Good morning, dear students. We are going to understand a very important concept of the chapter fundamentals, that is journal entries and calculation of opening capital. So we have to understand today journal entries related to profit and loss appropriation account. Before we move ahead to the journal entries, you should know how do we prepare the profit and loss appropriation account. On the debit side, we write all the appropriations, the expenses which are to be paid by the firm to the partners, and on the credit side, we write all the incomes related to partners. So while preparing profit and loss appropriation account, we should keep in mind what all comes on the debit side and what all comes on the credit side. This will help us to pass the correct entries with great ease. तो देखते हैं कि appropriation account में एक rough इसका sketch बना लेते हैं, which will help us to understand the journal entries more clearly. तो अगर हम देखें P&L appropriation account में हम सबसे पहले क्या करते थे? In the P&L appropriation account, first of all, we used to transfer net profit from profit and loss account. तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट लिखते थे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द चार्जेस. अगर P&L एप्रोप्रिएशन में बाय P&L लिखा है तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन. तो द फर्स्ट एंट्री जो हमारी बनेगी वो हमारी बनेगी इस अकाउंट के थ्रू ही. तो नंबर वन एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, profit and loss account debit to P&L appropriation account. Why do we pass this entry? To post or to transfer the net profit from profit and loss account to profit and loss appropriation account. This is for what? Profit transferred, being net profit transferred to profit and loss appropriation account. Simple journal entry है, which we can pass with great ease, no problems. What about the second entry? If there is a loss, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉस को हम डेबिट साइड पर लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस. तो लॉस के केस में एंट्री ये बनकर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिवर्स एंट्री करेंगे. सिंपल टू अंडरस्टैंड. वी विल पास द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. स्टूडेंट्स यू आर एडवाइज्ड कि आप एंट्रीज जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्क्रीन पर वो आप साथ साथ लिखें. इफ यू विल कीप वॉचिंग द वीडियो you will not be able to understand it. It will be just a movie show for you and you cannot learn anything. Learning is possible when you will write something and you will write same exactly what I am writing here. So being net loss transferred to profit and loss appropriation account. So loss और profit transfer करने की entry simple होती है, which is always easier to write the entry in the examination. Now the most important part comes. If partnership firm has agreed to provide interest on capital to partners, IOC यानी कि interest on capital अगर हमें partners को देना है, so there are two partners A and B, so we will be writing the entry accordingly. But you should remember, first of all, it is compulsory to transfer any payable amount to partner to their partner's capital account or to their current account. So interest on capital क्योंकि ये एक allowable expense है when the firm earns sufficient profits, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा हमारा या कोई भी अमाउंट जो पेबल टू पार्टनर होता है, दिस विल फर्स्ट बी ट्रांसफर्ड टू देयर कैपिटल अकाउंट. जैसे हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट में इन क्लास 11 फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस में हम उठाकर सीधा प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे. तो इसी तरह से पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है फॉर्म के वो सब पार्टनर के लिए इनकम होते हैं. देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा. कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे व्हेन ओनली कैपिटल्स वर्ड इज गिवन एंड वी राइट करंट अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड. तो पार्टनर के आगे हम कैपिटल या करंट अकाउंट का यूज करेंगे. करंट अकाउंट का यूज करेंगे व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड. एब्सोल्युटली राइट. फिक्स कैपिटल के केस में हम करंट यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो थर्ड केस में देयर विल बी टू एंट्रीज ए एंड बी. फर्स्ट ऑफ ऑल IOC ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और उसके बाद इस IOC को हम क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से. यानी कि एप्रोप्रिएशन से हम डेबिट कर देंगे उसके अकाउंट में, बीइंग एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, P&L appropriation to interest on capital. This is the entry for closing interest on capital. That interest on capital account gets closed or transferred, right? Being IOC transferred. लिखिएगा नरेशन आप लोग. So this is the third concept, the third journal entry. Then comes for it is salary or any commission. तो सैलरी और कमीशन अगर फॉर्म देती है पार्टनर्स को तो वो कहाँ पर आएगा एप्रोप्रिएशन के?
it will be on the debit side to salary or to commission to the partner. Any salary, any commission payable to partner, entry will be the same. It will be on the debit side. तो पहले वो salary वो commission transfer होगा in their capital or current account. Salaries account debit, commission account debit, depending upon the situation. Sometimes board में एक बार आया था bonus to the partners. तो bonus payable to partners account debit. फॉर्म अपने एक्सपेंस है तो फॉर्म डेबिट करेगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी, क्रेडिट, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल गो टू देयर कैपिटल अकाउंट्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और व्हाट आई सेड, अगर कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट. व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, फिक्स कैपिटल के केस में करंट में जाता है, बाय डिफॉल्ट ये कैपिटल में जाता है, राइट. देयर आफ्टर सेकेंड एंट्री फिर वही होगी जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में करी थी कि अप्रोप्रिएशन से इसको ट्रांसफर कर देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, सैलरी और कमीशन. सैलरीज जो भी एक्सपेंस दे रखा होगा, और कमीशन और एनी बोनस और एनीथिंग पेबल टू पार्टनर्स, राइट. बीइंग कमीशन और सैलरी और बोनस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सिंपल टू अंडरस्टैंड. सैलरी आईओसी दोनों की एंट्री क्लियर है अब आपको. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, दैट इज आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. यू आर राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम्स ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि फॉर्म की इनकम होती है, फॉर्म चार्ज करती है पार्टनर से, तो चार्ज करेगी पार्टनर से उनकी ड्राइंग पर, तो फॉर्म अपनी क्रेडिट साइड पर दिखाएगी. अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट जनरल एंट्री शैल बी पास, आईओडी टू पी&एल अप्रोप्रिएशन. बट सबसे पहले हम वही करेंगे विच वी हैव बीन डूइंग. सबसे पहले इसको हम चार्ज करेंगे कैपिटल से, और कैपिटल से चार्ज करने का सीधा मतलब है कि कैपिटल में ये डेबिट होगा. तो क्या एंट्री बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. क्यों करेंगे डेबिट, बिकॉज द कैपिटल विल डिक्रीज. आईओडी चार्ज करेगी फॉर्म पार्टनर से, तो फॉर्म की पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड. और यू कैन से करंट अकाउंट. द रूल्स आर सेम इन ऑल द कॉन्सेप्ट्स. करंट अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ये कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं रहेगा, नो चेंज. नाउ interest on drawings. These are the two important journal entries, children. You must know. Partners capital to interest on drawings, and B entry will be, what will be the next entry? Interest on drawings account debit. Interest on drawings account debit. Interest on drawings account debit to P&L appropriation account. Being an income, इसको हमने appropriation में क्रेडिट करके ट्रांसफर कर दिया. बीइंग आईओडी ट्रांसफर्ड. So there are two journal entries. First for charging interest on drawings. Do remember, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो आप फर्स्ट एंट्री करके छोड़ देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड. दिस इज फॉर चार्जिंग फ्रॉम द पार्टनर्स, एंड दिस इज फॉर ट्रांसफर. वी नो वेल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन, transferred to P&L appropriation account. Okay, so these are the 5 most important and basic entries of P&L appropriation. If you want to know one very important aspect of the chapter, that is general reserve. अगर general reserve आता है तो general reserve अगर आप देखेंगे तो फॉर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है, क्योंकि प्रॉफिट का कुछ पार्ट फॉर्म अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाती है रिजर्व. तो वो रिजर्व हमारा डेबिट साइड पर दिखाया जाता है. तो डेबिट साइड पर अगर हम दिखा रहे हैं अप्रोप्रिएशन की, तो क्या जनरल एंट्री बन कर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व अकाउंट. सिंपल एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इसमें हमारा पार्टनर्स कैपिटल नहीं आता, क्योंकि देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व बिटवीन द पार्टनर्स अनलेस अंटिल देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. तो P&L अप्रोप्रिएशन में हम क्या लिख देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट. और जनरल रिजर्व 3 तरह से निकाला जा सकता है. इफ यू वॉच द P&L appropriation वाला सेशन, देयर यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि जनरल रिजर्व को डिविजिबल प्रॉफिट पर, नेट प्रॉफिट पर और नेट डिविजिबल प्रॉफिट पर कैलकुलेट करते हैं. कैसे करते हैं, प्लीज वॉच दैट सेशन, दैट विल मेक यू क्लियर. तो अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व वाली एंट्री भी हमको आगे करनी. लास्ट एंट्री का जो कॉन्सेप्ट बचा है वो हमारा क्या है, कि जो हमारा लास्ट में प्रॉफिट निकल कर आता है, द प्रॉफिट विच इज द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स. अगर हम देखें तो प्रॉफिट आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, लॉस, विच वी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो.
you have done already. So if there is profit, what entry shall be passed? P&L appropriation account debit, P&L appropriation account debit, P&L appropriation account debit to partners capital. अगर फॉर्म की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल, और अगर फॉर्म की कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर व्हाट कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल. ओके. एंड लॉस के केस में रिवर्स एंट्री आएगी. बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड और क्रेडिटेड, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दिया. बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. 8 पॉइंट अगर आप देखो तो इसकी रिवर्स एंट्री आएगी फॉर द केस ऑफ लॉस. द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंट्री. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अगर फॉर्म को लॉस निकल कर आता है अप्रोप्रिएशन में तो इट विल बी लाइक दिस. अदरवाइज आपको याद ये रखना है कि कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन एवर देयर इज अ डिक्रीज ड्यू टू एनी रीजन. जब भी कभी लॉस होगा या पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा, और कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होगा व्हेन एवर देयर इज अ एक्सपेंस ऑफ द फॉर्म. तो फॉर्म का एक्सपेंस पार्टनर के लिए क्या होता है? इनकम. दिस इज द स्ट्रेट अवे सिंपल कॉन्सेप्ट. बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड. ये 8 एंट्रीज के कॉन्सेप्ट है. आप इसे प्रैक्टिस करो, समझो अच्छी तरह से, विच विल बी डूइंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेशन, बट यू शुड रिमेंबर दी 8 एंट्रीज फ्रॉम द appropriation account, right? Next to understand from this chapter is calculation of opening capital. अगर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. सवाल ये आता है कि ये ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट करते ही क्यों हैं? व्हाई डू वी गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल? ये कंसेप्ट है ही क्यों? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डूइंग दिस कंसेप्ट? इफ यू रियली विश टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, so I would like to mention a note here. Interest on capital, अगर फॉर्म ने एग्री किया है, पार्टनर्स ने एग्री किया है कि हमें मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड on interest on capital is always calculated on the opening balances of capitals. On the opening balances of capitals, पार्टनर के ओपनिंग जो बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स होते हैं उन पर हम, उस अमाउंट पर हम क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल इन द एंड. व्हाई? वॉट एवर द कैपिटल, जो फॉर्म ने पूरे ईयर यूज किया है कैपिटल, उस पर फॉर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, ना कि उस बैलेंस पर जो कि लास्ट डे पर बचा है. तो होल ईयर कितना कैपिटल बिजनेस में रहा, बिजनेस के बिगिनिंग से लेकर एंड तक कितना कैपिटल चला, उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं. तो अगर क्वेश्चन में कभी क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो ओपनिंग कैपिटल निकालना क्यों मैंडेटरी है? टू कैलकुलेट IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब कैसा फॉर्मेट है इसका, क्या इसका फॉर्मूला है, दैट यू शुड नो वेरी वेल. अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं स्टूडेंट्स, इफ द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के केस में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स द ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज अंडर. नंबर 1, हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा क्लोजिंग कैपिटल ईयर एंड पर 31 मार्च को कैपिटल इतनी इतनी थी पार्टनर्स. सबसे पहले हम पार्टनर की क्या लिख देंगे? क्लोजिंग कैपिटल. ये अमाउंट हम क्लोजिंग कैपिटल का जो हमें दे रखा होगा हम उसमें लिख देंगे. अब क्लोजिंग तक हम कैसे पहुंचे? सारे अलाइबल्स को माइनस करके और सारे डेबिट करने वाले आइटम्स को माइनस करके. अब क्लोजिंग से हमें वापस ओपनिंग पर जाना है, रिवर्स जाना है. तो अगर आपको रिवर्स जाना है तो आपको उन सभी आइटम्स को प्लस करना होगा जो आपने माइनस करे थे, और उन सभी आइटम्स को प्लस माइनस करना होगा जो आपने ऐड करे. मतलब आप क्या क्या माइनस करते हो क्लोजिंग तक पहुंचने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है जो हम माइनस करते हैं वो होता है पार्टनर की ड्राइंग्स. ड्राइंग्स मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट्स. ओके, तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट्स कुछ भी हो, वो सब हमारा इसी में आता है. ड्राइंग्स मीन्स ड्राइंग्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो या फिर विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट हो बिजनेस का. तो वो अमाउंट जो आपने माइनस कर दिया था वो आप ऐड करोगे क्लोजिंग से ओपनिंग में जाने के लिए. नंबर 1 इज ड्राइंग्स. और अगर आपने IOD लगा दिया था तो वो भी आप कर लेंगे ऐड. इफ सपोज IOD आपने चार्ज करा था तो कैपिटल से कम हुआ होगा, वो भी आप ऐड कर लोगे. और अगर कोई शेयर ऑफ लॉस है जो आपने माइनस कर दिया था तो वो भी आप क्या कर दोगे? ऐड, पार्टनर का शेयर ऑफ लॉस. तो ये दो आइटम्स तो नॉर्मली बहुत कम दिए होते हैं एग्जाम में. तो ड्राइंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स. ओके, अब आप देखेंगे कि हम लेस क्या करेंगे, व्हाट टू सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है क्या है? दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमने ऐड कर दिया था क्लोजिंग तक पहुंचने के लिए, उसको हम क्या कर देंगे? माइनस. और जितने भी अलाइबल्स अगर आपने दे दिए हैं
जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने दे दिया पार्टनर्स को तो वो भी माइनस करना पड़ेगा, अगर आपने कोई सैलरी या कमीशन दे दिया तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। जो भी चीज आप पार्टनर को अलाउ कर चुके हो और उसको पे कर चुके हो, दैट वी हैव टू माइनस। ओके। और अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो भी हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से कैपिटल हमारी बढ़ गई होगी। क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको माइनस करना पड़ेगा और हर उस चीज को प्लस करना पड़ेगा जिससे कि हमारा कैपिटल क्या हो गया था, कम हो गया था। व्हाट वी गेट नाउ इज फाइनली ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। आप लेकिन अपने एग्जाम में अपनी बुक में अगर आप देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग को ऐड करते हैं, नंबर वन। दूसरा, शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्राइंग्स कोई सी भी हो सकती है, आउट ऑफ कैपिटल भी और आउट ऑफ प्रॉफिट भी, कोई सी भी ड्राइंग इसमें हमको दी रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस नॉर्मली हमारे बुक्स में कोर्स में कम है, बट यू शुड रिमेंबर। और आईओसी अगर फॉर्म ने अलाउ कर दिया है तो आईओसी भी हम क्या करते हैं, माइनस। ओके। एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी समटाइम्स इट इज गिवन, सो हियर वी आल्सो हाईलाइटेड। तो इसको आप याद रखिएगा, व्हाट वी गेट इज द ओपनिंग कैपिटल। और इस ओपनिंग कैपिटल पर हम क्या निकालते हैं, आईओसी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। नाउ अगर कैपिटल फिक्स्ड है, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड इफ द फर्म फॉलोज, अगर फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन कर रही है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अगर आप देखोगे तो दो ही चीजें आ सकती हैं कैपिटल अकाउंट में, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या फिर कैपिटल विड्रॉ। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉ के लिए क्या करेंगे, ये बहुत हमारे बुक में जो है ना के बराबर है, लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स यानी कि जो लेवल है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वहां पर हमें ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ आप क्या ऐड करोगे, ओनली एंड ओनली कैपिटल विड्रॉ। कैपिटल विड्रॉ को आप ऐड करेंगे और क्या चीज आप लेस करोगे, सिंपल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यू विल गेट ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फिक्स कैपिटल मेथड से थोड़ा हमारा कम आता है, लेकिन वी शुड नो, अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो बच्चा वही प्रॉफिट को ऐड और लेस करके बैठ जाएगा, विच विल बी अ मिस्टेक। तो दीज थ्री थिंग्स ओनली यू हैव टू रिमेंबर टू गेट द व्हाट कैपिटल। अब जो निकल कर आएगा हमारे पास, दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। तो फिक्स कैपिटल में सिर्फ इंट्रोड्यूस्ड को हम माइनस करते हैं और कैपिटल विड्रॉन को हम प्लस करते हैं, वी गेट द ओपनिंग कैपिटल स्ट्रेट अवे। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है हमारा एग्जामिनेशन में और बहुत ही रेगुलर, बड़ा फ्रीक्वेंट पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, फॉर दैट यू शुड नो दैट क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स हाईलाइट करा हुआ देख सकते हो आप, एंड माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड minus IOC and additional capital, we get opening capital, right? So these are the two basic concepts which I wanted to share in this session. And if we talk about questions, so there are few questions which I would like to explain to you, which is for which we all are here to understand. That is question number 24. Ashish and Akash are partners sharing profit in the ratio of 3:2. अपना आप रजिस्टर, अपना पैन अपने साथ रखो, तभी you will be able to enjoy the concept, otherwise it's a waste of time, don't watch it. Their capital accounts had a credit balance of 5 lakhs and 6 lakhs respectively on 31st March. This is most important, students. Pay attention here. It is 31st March mentioned. Capital is given on last day of the year. This is what capital? This is the closing capital. Why? Because capital is given on 31st of March at the end of the year. और बोल भी रहा है वो आगे. After debit of drawings during the year, 1,50,000 and 1 lakh rupees respectively. तो ड्राइंग्स हम माइनस कर चुके हैं एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 5 lakhs. नेट प्रॉफिट फॉर्म ने अर्न किया 5 lakhs, लेकिन जो ये कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में हमको, दिस इज गिवन व्हेन, दिस इज गिवन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट इन द ड्राइंग्स ओनली। तो सिर्फ ड्राइंग्स ही माइनस करी है हमने, प्रॉफिट को हमने इसमें कंसीडर ही नहीं किया इन ऑर्डर टू रीच एट द क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमें 10%, एंड देन व्हाट इज आस्क्ड, दे हैव आस्क्ड फॉर pass the journal entry for allowing interest on capital and prepare P&L appropriation account. appropriation भी बनाओ और एंट्री भी करो। तो 24th क्वेश्चन में बहुत ही इजी वाला appropriation बन जाएगा, लेकिन appropriation बनाने से पहले आपको जाना होगा in the calculation of opening capital. Why? Because the question says calculation of opening capital is very very important in this question. जब तक closing capital से opening नहीं निकलेगा क्वेश्चन ही begin नहीं हो सकता। इन द क्वेश्चन यू कैन सी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आपको, कितना कितना गिवन है, दो पार्टनर्स हैं आशीष एंड आकाश। तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन टू अस इन द क्वेश्चन ऑन 31st March 2024, it is clearly mentioned, 2025 rather, it's mentioned clearly that the closing capital of two partners, आशीष, आप दो कॉलम बना के रखो अपने पास,
आशीष एंड आकाश का, so that you can easily calculate. Closing capitals are given 5 lakhs and 6 lakhs. सबसे पहले आप साथ साथ लिखो 5 lakh आशीष कैपिटल, 6 lakhs 50,000, सॉरी 6 lakh रुपीज इज द कैपिटल ऑफ आकाश. अब क्या ऐड करना बताया था आपको? अच्छा, ये नहीं पता कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है. जब कुछ ना गिवन हो तो इट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग. तो ड्राइंग्स को हम ऐड कर देंगे. ड्राइंग्स आर क्लियरली गिवन 1,50,000, 1,50,000, and how much children it is? 1 lakh rupees. 1 lakh rupees. These two drawings are given. Profit को हम माइनस नहीं कर रहे because profit was not considered while calculating closing capitals. तो 6,50,000 ही आ जाएगा इसका ओपनिंग कैपिटल. इसका ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा 7 lakh rupees. Accordingly, we will calculate the interest on capitals in the base with the help of opening capitals. आगे दोनों की निकल के बड़े ही इजीली. नोट क्या याद रखना है? प्रॉफिट has been ignored. Why profit has been ignored? Profit तो माइनस करते हैं. Profit has been ignored because profit has not been added while reaching or while calculating the amount of closing capital. Closing capital निकालते वक्त आपको फॉर्म ने प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया, आफ्टर प्रॉफिट नहीं कह रहा, आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग कह रहा था, तो प्रॉफिट को क्या कर दिया गया? इग्नोर. सिंपल आ गया. आईओसी निकाल देते हैं अब हम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा? 65,000 फर्स्ट वाले पार्टनर का, बिकॉज क्लियर नजर आता है 6,50,000 का निकालना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर आशीष. आशीष का आईओसी आ जाएगा 6,50,000 का 10% 65,000. 6,50,000 का 10% दैट इज 65,000. और दूसरे पार्टनर है आकाश, उनका भी निकल कर आ जाएगा अमाउंट 7 लाख का 10% दैट इज 70,000. एप्रोप्रिएशन आप लोग अपने आप बना सकते हो उसका, उसमें बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है. क्यों नहीं है बड़ी बात? बिकॉज ओनली वन आइटम दैट इज दिस थिंग आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन. तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. वीडियो को यहीं पॉज करके आप खुद बनाकर देखो और चेक करो कि आपका आंसर सही आ रहा है पे एंड एप्रोप्रिएशन का या नहीं. और नहीं आ रहा, इट मीन्स दैट यू आर स्टिल नॉट फुली प्रिपेयर टू प्रिपेयर द एप्रोप्रिएशन का. प्रॉफिट आपको दे रखा है 5 लाख रुपीज. 5 लाख रुपीज के प्रॉफिट में से अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना हमारा प्रॉफिट में से आईओसी माइनस होगा. आईओसी दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स वी विल माइनस आशीष एंड आकाश. आशीष एंड आकाश का दोनों का आईओसी जो कि 65 एंड 70,000 है, वी विल माइनस दैट इज 135,000. एंड 135,000 अगर हम माइनस कर दें तो विल गेट द प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट विल बी हाउ मच? आकाश एंड आशीष दोनों का आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो. कैसे निकालेंगे? क्विकली टेल मी हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट का शेयर. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा है, लेकिन हम प्रॉफिट का पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे विच इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉफिट. नेट डिविजिबल प्रॉफिट. बोलिए क्या कहते हैं? नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स. ओके, 5 lakhs minus 1,35,000 दैट विल गिव अस 3,65,000. इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 के रेशियो में. दैट मीन्स 3/5 एंड 2/5 कैलकुलेट कर लेंगे. 365 का 3/5 एंड 365 का 2/5. इट विल बी 73 into 3, 2 lakhs. 73 into 3 is 3 3 is 9 and 3 7 is 21. That means 2,19,000 आशीष का शेयर आएगा. दूसरे पार्टनर का रिमेनिंग आ जाएगा यानी कि 1,46,000. अब आता है क्वेश्चन जनरल एंट्री का. जनरल एंट्री के लिए क्या बताया गया आपको? जस्ट नाउ ओनली आई एक्सप्लेन द जनरल एंट्री. सबसे पहले आईओसी को क्या करो? ट्रांसफर कर दो उनके कैपिटल अकाउंट्स में. और कैपिटल फिक्स हो तो कहाँ ट्रांसफर कर दो? करंट में. यहाँ पर कुछ नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल को हम क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग. और करंट का कोई पॉइंट नहीं आएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल एंड टू आकाश कैपिटल. दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आईओसी को ट्रांसफर कर दोगे. कितना आईओसी है? इट इज 135,000. कैसे है? 65 ऑफ आशीष, 70 ऑफ अनदर पार्टनर आकाश. बीइंग आईओसी क्रेडिटेड और अलाउड टू पार्टनर्स. अब अलाउ करने के बाद आप इसको ट्रांसफर कर दो. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. डोंट राइट आईओसी एंड अदर थिंग्स, राइट द कंप्लीट टर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे 1,35,000. अकॉर्डिंगली विल गेट द फाइनल आंसर. अब आप चेक कर लो आपका आंसर एप्रोप्रिएशन का सेम आया था या डिफरेंट. ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 25 next. After this we'll be doing it quickly and rapidly. We'll finish the question 25. Yes,
Naresh and Sukesh are partners with capitals of 3 lakhs each as on 31st March 2025. Naresh has withdrawn 50,000 against capital. नरेश देखिए दोनों का कैपिटल दे रखा है 31 मार्च को, यानी कि इट इज द क्लोजिंग कैपिटल। एंड नरेश की ड्राइंग्स दे रखी हैं अगेंस्ट कैपिटल कितना रुपीज 50,000 ऑन 1 अक्टूबर एंड 1 लाख ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो नरेश ने 2 बार अमाउंट को विड्रॉ करा है, 50,000 कैपिटल एंड 1 लाख रुपीज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सुकेश हैड ड्राइंग्स ऑफ 1 लाख रुपीज, सुकेश की ड्राइंग्स 1 लाख रुपीज की दे रखी हैं, दोनों की ड्राइंग गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 10%, नेट प्रॉफिट ऑफ 2 lakhs विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पास द जनरल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और आईओसी के लिए आपको एंट्रीज करनी होंगी, बट आई मस्ट से कि अगर प्रैक्टिस करनी है स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव तो यू मस्ट ट्राई फॉर पी एंड appropriation account also. Why? Because appropriation will help you to gain great confidence in understanding the concepts. So children, it is my sincere advice to solve each and everything, whether asked or not. This will only and only going to give you the great confidence. So first of all, we calculate what? Opening capitals. Why? Because कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल में हमें जाना होगा, बिकॉज कैपिटल्स आर गिवन एट द क्लोज। अब फटाफट आप क्वेश्चन सामने रखो अपने बुक और आप बताओ कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्या फॉर्मूला बताया गया है आपको? क्लोजिंग कैपिटल, यस। ऐड क्या कर दें? जो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया था, दैट इज ड्राइंग्स। एब्सोल्युटली राइट। ड्राइंग्स को फटाफट ऐड कर देंगे और क्या लेस कर दें इसमें से हम? व्हाट शैल आई लेस? आई शुड सब्ट्रैक्ट प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट हमारा इसमें क्रेडिट हुआ ही नहीं है अभी तक, so therefore we will be simply adding the drawings only and you'll get the answer for both the partners, for Naresh and for Sukesh. तो देखो कि आप, हमने तो आपको काफी बड़ा करके समझाया है सारे मैक्सिमम आइटम्स के साथ, आगे फर्दर चैप्टर में थोड़ा सा आएगा, अदरवाइज हियर इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। क्लोजिंग कैपिटल दोनों की 3 लाख ईच दे रखा है, तो ईच है, इट मीन दोनों का कैपिटल कितना कितना था? 3 लाख रुपीज। तो नरेश का भी 3 लाख रुपीज एंड सुकेश का भी 3 लाख। अब ड्राइंग्स पे बात आती है। ड्राइंग्स 2 तरह की दे रखी है, एक अगेंस्ट प्रॉफिट और एक दे रखी है आपको अगेंस्ट कैपिटल, दैट इज आउट ऑफ कैपिटल। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लुक इनटू माय एक्सप्लेनेशन गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक, ड्राइंग्स दोनों ऐड करनी है, आउट ऑफ कैपिटल भी और आउट ऑफ प्रॉफिट, दोनों को ऐड करके फिर जो है हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे। तो ड्राइंग्स हमें 2 दे रखी हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट इज द ड्राइंग्स ऑफ द फर्स्ट पार्टनर एंड व्हाट इज द ड्राइंग ऑफ द सेकंड पार्टनर। सो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज गिवन 50,000 ऑफ नरेश। नरेश की जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, ये मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप चाहो तो ऐड करके भी लिख सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। 50,000 हमारी जो ड्राइंग है ये नरेश की है, वी विल ऐड नरेश का अकाउंट, फिर 50,000 ऐड कर देंगे, विच इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, दिस इज आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इट्स मेंशन क्लियरली। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, नरेश हैड विथड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, तो दिस इज अगेंस्ट कैपिटल। अब कैपिटल हो या आउट ऑफ प्रॉफिट हो, हमें तो ऐड से मतलब। अच्छा, उसके बाद वो बोलता है ऑन 1 अक्टूबर 1 लाख ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर एक और ड्राइंग करी इसने एंड दैट वाज आउट ऑफ प्रॉफिट, सो दैट ड्राइंग्स वी आर आल्सो गोइंग टू ऐड। तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज एग्जाम में आपको टाइम बचाना है वहां बैठकर रादर देन wasting time on taking extra steps. So 3 lakh plus 1 lakh plus 50, and here in Sukesh case only one drawings are given, which is 1 lakh rupees, और जब ड्राइंग के बारे में कुछ ना लिखा हो, it is always considered out of profits. By default drawings हमेशा क्या होती हैं? Out of profits. So 4 lakhs and 50,000, and here it will be 4 lakh rupees. बस we have got the answer, opening capitals. अब आप बड़े ही प्यार से इन ओपनिंग कैपिटल पर क्या निकाल सकते हो? आईओसी, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। छोटा सा इसमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ पर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड पॉइंट लगा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर नरेश। छोटा सा एक डेट पर आपको ध्यान देना होगा, 4,50,000 का हमें कैलकुलेट करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, फॉर नरेश देखिएगा, नरेश एंड सुकेश का जो कैपिटल था वो 31 मार्च को उतना था, और नरेश ने जो विड्रॉ किया है वो 50,000 अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉ किया है ऑन व्हाट डेट? 1 अक्टूबर 24 एंड 1 लाख अगेंस्ट प्रॉफिट। तो 1 अक्टूबर 24 मतलब अगर ये कैपिटल 1 अप्रैल 24 को है, ओके, तो 1 अप्रैल 24 को अगर ये कैपिटल है, तो 1 अप्रैल 24 से लेकर
और ये कैपिटल जो 4,50,000 है ये कहाँ तक रही, 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर 2024 तक की कैपिटल 4,50,000 रही। तो 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर का हम परसेंटेज निकाल देंगे विच इज 10%। तो 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर हाउ मेनी मंथ्स इट रिमेन, 6 मंथ, 6 महीने तक की कैपिटल लगी रही, क्योंकि 6 महीने के बाद उसने 2 ड्राइंग्स एक साथ करी है। ये जो दोनों ड्राइंग्स हैं ये 1 अक्टूबर की है। ओके, so on this date he had withdrawn the money. So 4,50,000 का 10% for how many months? 6 months. This will be how much, children? 45,000 का हाफ अगर हम कर देंगे तो इट विल बी 22,500। अब हमें निकालना है नरेश का रिमेनिंग कैपिटल पर। अब 4,50,000 में से पार्टनर ने कितना कैपिटल से विड्रॉ किया, जो प्रॉफिट से विड्रॉ हुआ है उसको इग्नोर करो। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज इग्नोर्ड, ये मैं नोट लिखवाऊंगा आपको अभी। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज इग्नोर्ड फॉर कैलकुलेटिंग आईयूसी। तो 4,50,000 में से 50,000 पार्टनर ने विड्रॉ करा आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ प्रॉफिट वाला हम कभी विड्रॉ नहीं करते, कभी माइनस नहीं करते। तो आउट ऑफ कैपिटल वाला अमाउंट जो था उसने विड्रॉ किया 4.5 लाख में से 50,000। ही रिमेन्ड विद 4 लाख रुपीज नाउ इन द बिजनेस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। और 10% हम कैलकुलेट करेंगे व्हेन फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च तक फिर 6 महीने आएंगे हमारे इसमें। तो सर इट विल बी 20,000 रुपीज। दैट मीन्स total IOC for partner 1 will be 42,500 rupees, number 1. And second, interest on capital for which partner? The partner Suresh will be how much? Simple to calculate, will be simply calculating for partner Suresh. सुरेश का कैपिटल कितना था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये निकाला आपने 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख पर वी विल बी कैलकुलेटिंग फॉर 10% फॉर द होल ईयर। वाई फॉर द होल ईयर? आप बोलेंगे सर ड्राइंग तो उसने भी करी है, पर वो ड्राइंग कौन सी है? दिस इज आउट ऑफ प्रॉफिट, और आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग को हम कंसीडर नहीं करते कहीं पर भी, ना उसकी डेट ना उसका अमाउंट फॉर कैलकुलेटिंग आईओसी। सिंपली विल कैलकुलेट 40,000। तो क्या लर्निंग आपको मिली? नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैप वाइल कैलकुलेटिंग आईओसी, वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज इग्नोर्ड। ड्राइंग्स against profit, drawing against profit is ignored. Okay, only drawing out of capital is considered for the remaining period. Now we will be passing the journal entries because only entries are asked. मैं ये कहूँगा कि आप लोग अप्रोप्रिएशन जरूर बनाइएगा। एंट्रीज बनानी बहुत 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 आसान है। क्या एंट्रीज होती हैं? देयर आर 2 एंट्रीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले ट्रांसफर कर दो आप, इन हुज अकाउंट? इन नरेश एंड सुकेश कैपिटल अकाउंट। नरेश capital and Sukesh capital, and Sukesh, sorry, it is Naresh and Sukesh, not Suresh. It's Naresh and Sukesh, not Suresh. Okay, the name has been, yeah, ठीक लिखा था, नरेश एंड सुकेश capital। तो हम पहले ट्रांसफर कर देंगे, और कितना ट्रांसफर करेंगे? फर्स्ट पार्टनर का आ रहा है 42,500 एंड 40,000, दैट मींस 82,500 टोटल एक्सपेंस फॉर्म का है। फर्स्ट पार्टनर का 42,500, सेकंड पार्टनर का 40,000 ट्रांसफर कर दिया। Being IOC credited or allowed to partners. Next entry will be P&L appropriation account debit, फॉर्म अपना एक्सपेंस डेबिट कर देगी 82,500 का, और आईओसी को क्लोज कर देगी, क्रेडिट कर देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आप चाहो तो इन 2 एंट्रीज की एक एंट्री सिंगल भी पास हो सकती है। अगर हम क्या कर दें, आईओसी से आईओसी कैंसिल कर दें, क्योंकि एक बार डेबिट है एक बार क्रेडिट, तो क्या एंट्री बच रही है? P&L appropriation टू नरेश टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। बट आई विल नॉट एडवाइस फॉर दिस, क्योंकि एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में किसी तरह से भी एंट्री पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट और फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट। तो आपको दोनों एंट्रीज आनी चाहिए, राइट। एंड लास्ट एंट्री विल बी P&L appropriation, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। P&L appropriation account debited, P&L appropriation account debit to नरेश कैपिटल एंड टू सुकेश कैपिटल। ये चीज हम आपको कहेंगे कि आप P&L appropriation से करके देखो। अदरवाइज जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से आप शॉर्टकट लगा के फटाफट एंट्री कर सकते हो। एप्रोप्रिएशन तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बोला जा रहा है। अदरवाइज सिंपली क्या फर्म का प्रॉफिट कितना है? इट्स गिवन क्लियरली इन द क्वेश्चन 2 लाख रुपीज, और 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में से हमारा एक ही खर्चा हुआ है 82,500 का। सो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? दिस इज द नेट प्रॉफिट, दिस इज द आईओसी। एक ही खर्चा आईओसी का हमारा हुआ है, तो ये रफ में हमने वर्किंग कर ली।
1,17,500 rupees. 1,17,500 is the profit earned by the firm. इस प्रॉफिट को ये दोनों पार्टनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? रेशो तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या मानेंगे इन दोनों को? इक्वल पार्टनर्स। एब्सोल्युटली राइट। तो 117,500 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2 5s are 10, 2 8s are 16 and 58 and 2 7s are 14 and 2 5s are 10. That means 58 750 and 58 750 being profits distributed. This is how we'll finish the concept. Rest of the part we will do in the next session, immediately after this session, so that you can understand the complex questions of this chapter. Otherwise, this was the journal entries and appropriation account and calculation of opening capital concept was explained to you. All the very best. Do practice each and every question again. Thank you.